हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में मैं गिरीश कुमार साहू पाथ टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म वी आर making available the video sessions or the series based on the mains test series 2023. We are going to see the explanation part of that test which were held on this mains test series organized by Path IAS Academy. Every year we organize here, and the subjects which were included in that test papers, we are presenting the explanation part subject wise through this platform. This video series is for the students who are going to appear in the mains 2023 exams, and who are going to appear in future for CGPSC mains exam. Okay, so for every CGPSC aspirant this video is very helpful or beneficial. So what we are going to see today? Well, today we have taken the test number 8, which was held on 20th of March 2024, and in this paper the subject which is included, it was Geography of India. So Geography of India का हिंदी में एक अलग लेक्चर पहले ही अवेलेबल हो चुका है स्पष्टीकरण का, यानी कि एक्सप्लेनेशन का, and today we are going to explain that questions which were asked in that test number 8 from this subject Geography of India. So today this is the session which is for English medium students. Okay, so let's see what is inside. Well, if you are not registered yet for this mains test series exams, then you can still register yourself for this mains test series 2023, which is organized by Path IAS Academy through this online and offline both mode. Okay, so whatever is your comfortable zone, you can register for online and offline both. Okay, 3 rounds we have. Total number of subjects test papers included is 28, and we have round 1 completed, round 2 is still going on, and then round 3 is there. Okay, round 1 is of the paper of subject wise, and then the paper wise subject CGPSC according mains. Okay, round 2 and round 3 is taken. Okay, as per the difficulty level is increased. So if you are going to register for this mains test series today, then you will get the PDF of round 1 also, all question papers, and for more details you can contact at this numbers. Okay, let's see in this test paper what are the questions asked from this Indian geography subject. We have 4 parts for the marking system, 2 marks, and then 4 marks, 8 marks, and then 10 marks. Okay, so 2 marks question में 30 words में हमको लिखना होता है. Question number 1 देखते हैं. What are the main factors behind declining mortality rate in India? Then question number 2 is write the names of major types of iron ore. Then question number 3 is which are the cotton producing areas of India, and then number 4 is explain the geographical nature of the Eastern Ghats, and then number 5 is mention important areas and characteristics of the laterite soils of India. Okay, so ये 5 questions आपके पूछे गए 2 marks के आधार पे, यानी कि total 10 marks का question यहाँ पर हमने यहाँ पर पूछा था 2 marks का 5 question. Okay, देन 4 मार्क्स में आते हैं, तो अगेन 4 मार्क्स का जो है टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर था, यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 4 मार्क्स का 60 वर्ड्स में लिखने का. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस? नंबर 1, व्हाट आर द एक्सटेंशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नदर्न सरकार्स. Then number 7, explain the role of white revolution in the development of animal husbandry in India. Then number 8, describe the factors affecting the climate of India. Number 9, mention the bauxite producing regions of India. And then number 10, which are the regions with a higher total fertility rate in India. ये आपका क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चंस 5. बात करते हैं क्वेश्चन जिसकी 8 मार्क्स में आपको आंसर करनी होती है. ठीक है, अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर
as a source of non-conventional energy? This is the question. Then number 12, give description about the interstate migration in India. Then next is, why is the production of oil seeds important for India? Then describe the food processing industry in India. And the last one is, India's climate varies with the region with differential implications. Explain the statements. Okay, ये आपका क्वेश्चन 8 मार्क्स का, जो कि अगेन यहाँ पर पूछा गया है 5 क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है. ओके, देन 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, जिसमें हमको 125 वर्ड्स में आंसर करना है, 3 क्वेश्चंस वी हैव. Question number 16, write the characteristics of the Himalayan region. And then number 17, discuss the regional variation and responsible factors of density in India. And then last question is, highlight the potential of geothermal energy in India. Okay, so these are the questions which were asked in the test number 8 from the Geography of India subject. Now let us discuss the explanation part. So first we will go through the different answer sheets written by different students registered for this mains test series exams, and then we will talk about the plus and minuses, क्या improvement हम कर सकते हैं, and then we will see the full content, or we can say the model answer prepared by the content team of Path IAS Academy. And this content of the model answer carry the full answer, you can say, means if we will provide the full content, you can answer according to the marking system, maybe of 2 marks, maybe of 4 marks. Okay, so let's see the answer sheets. Okay, question number 1 हम लेते हैं आंसर शीट, जो है हमारा पहला आंसर शीट. What are the main factors behind the declining mortality rate in India? ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर. ओके, सो इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने नंबर 1 लिखा है, पॉइंट वाइज इन्होंने बनाया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4, ऐसा बुलेट पॉइंट बना करके, जो कि एक अच्छी चीज है. हम 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में ऐसा करते हैं, और ये एक कॉमन चीज है आंसर लिखने के लिए. ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन टेक्नोलॉजी, एंड देन लिटरेसी एंड क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, ये 4 पॉइंट इन्होंने बनाया है, और 1 लाइनर में जो है थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, इसको डिस्क्राइब भी किया है. ओके, सो ये एक कंप्लीट आंसर यहाँ पे हमको दिखता है, जिसकी वजह से ये आपका अप्रोप्रिएट रीजन इन्होंने दिया है, और 2 मार्क्स इनको मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपका आता है, लौह अयस्कों के प्रमुख प्रकार के नाम लिखिए. राइट द नेम्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स. ठीक है, नाम हमको लिखना है, और इन्होंने हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और सेडेराइट लिखा हुआ है. इनको 1.5 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं. डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर केवल नाम लिखने के लिए बोला गया था, तो केवल नाम लिख करके छोड़ा जा सकता था, 2 मार्क्स मिल जाते. लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसा पेपर आ जाता है जिसमें नाम के अलावा इसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर थोड़ा सा कंपेरेटिव चेकिंग यहाँ पे हो जाती है कभी कभी, और इस वजह से यहाँ पर जो है हाफ, जो यानी कि 0.5 मार्क्स आपके कटे हैं. ठीक है, तो बेहतर है कि मेजर टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स की बात हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहिए था, तब यहाँ पर 2 मार्क्स जो है कंप्लीट इनको मिल सकते थे. ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं 2 मार्क्स में. भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? ओके, विच आर दी कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, है ना. तो यहाँ पर ये जो चेक हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो सीधा सीधा इन्होंने जो है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, कुछ स्टेट्स के नाम यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली इनको 1.5 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं. ओके, चलिए एक दूसरा आंसर शीट हम लोग ले लेते हैं. What are the main factors behind declining mortality rate in India? Again, question number 1 is this. So rise in medical infrastructure, then rise in life expectancy, then reduction in malnutrition in women and child, and then various schemes of government such as polio mission, poshan abhiyan and midday meal. Okay, ये for the we can say that to minimize the malnourishment or to reduce the malnourishment, ये सब आपके वेरियस स्कीम्स के बारे में भी इन्होंने लिखा है. एक अच्छा आंसर यहाँ पे हमारा दिख रहा है, अप्रोप्रिएट रीजंस लिखे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जैसे लास्ट में एक कुछ स्कीम्स जो है इसके बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो एक अच्छा आंसर यहाँ पे हमको मिल रहा है ना. फिर आगे बढ़ते हैं. आयरन ओर के टाइप्स में इन्होंने जो तरीका अपनाया है, ये देखिए,
इन्होंने नाम लिखा है और नाम के अलावा जो है इन्होंने क्या किया है यहाँ पर बताया है इसमें कार्बन कंटेंट कितना है। ओके, और उसके अलावा फिर इन्होंने दो चीजें और लिखी हैं कि ये 4 टाइप्स है, उसमें से हाईएस्ट क्वालिटी कौन सी है, लोएस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर क्या है। ओके, सो यहाँ पर इनको 1.5 मार्क्स मिले हैं। एंथ्रेसाइट थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने जो है गलत लिख दिया था जिसकी वजह से इनको काटना पड़ा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं कहीं ना कहीं कि ये मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, और ये तभी आएगा जब हम लोग लिखते रहेंगे, लिखते लिखते प्रैक्टिस होती है। ओके, फिर यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखिएगा ये भी एक बड़ा अच्छा मुझे नजर आ रहा है, देखिएगा विच आर द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, दिस इज द क्वेश्चन। एरियाज विथ प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। ओके, चलो बहुत बढ़िया, इन्होंने थोड़ा सा एक रीजन भी दिया है कि ब्लैक सॉइल जहां पर है वहां पर ये मिलता है। तो कौन कौन सा है वो इन्होंने लिख दिया है, स्टेट का नाम महाराष्ट्र, गुजरात, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये नाम इन्होंने प्रमुख रूप से लिखा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भारत का, इंडिया का मैप बना हुआ है और ये थोड़ा सा एक एरिया इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि कहाँ पर ये है। ओके, तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन अगर मैं बोलूंगा तो, है ना। आंसर तो कंप्लीट नहीं है और इसमें चीजें लिखी जा सकती थी, इस वजह से वो हाफ मार्क्स जो है कटे हैं 2 में। ओके, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है अगर आप उसको देखें, ये और अच्छा, थोड़ा सा आउटलाइन अच्छा हो सकता था। बाकी जो प्रेजेंटेशन है कि मैप बना करके ये चीज बताना, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, है ना, तो ये देखो ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला स्पेस, तो इस स्पेस को आप जाने दीजिए। ये 4 लाइन जो आपको दिख रही है उसी के अंदर आप इस तरीके से ये एक ऐसा ब्लॉक बनाओ, उसके अंदर ये जो है भारत का मैप बना करके उसमें फिर आपसे रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। लेकिन हाँ, मैप, डायग्राम ये सब बिल्कुल आपको बनाना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, तो ये तो बनता है बॉस, ठीक है। फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मैप, आउटलाइंस, ये सब बिल्कुल बनाइए आप। ओके, चलिए फिर एक पेपर और ले लेते हैं। इन्होंने किस तरीके से लिखा है देखें जरा। इन्होंने भी लगभग जो है ये बुलेट पॉइंट में आंसर किया है पहला तो। ओके, और ये जो आंसर इन्होंने किया है काफी अच्छा की पॉइंट इन्होंने बनाया है। ये की पॉइंट आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से और कितना अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। लाइक एक बार देखें तो समझ में आ जाए कि हाँ भाई एकदम सॉलिड लिखा हुआ है। ओके, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, reduced rate of early marriages and child marriages, then nutritional literacy by Anganwadis to avoid the malnourishment. Okay, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। अगर अच्छा होता गवर्नमेंट स्कीम्स जो इन्होंने लिखा है उसमें कुछ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया होता, कुछ स्कीम्स के नाम इन्होंने लिखे होते। लाइक इसके पहले जो एक पेपर में हम लोगों ने डिस्कस किया तो हमको वहां पे नाम मिला था, लाइक पोलियो मिशन एंड मिड डे मील, है ना, ये सारी चीजें हमको मिली थी। ओके, सो ये एक बेहतर और अच्छा आंसर और हो सकता था, बट ठीक है, एक नंबर इनको मिला है, ये और अच्छा नंबर गेन कर सकते थे, है ना। फिर इसके बाद फिर देखिएगा, राइट द नेम्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स, तो इसमें आपके यहाँ पे 2 मार्क्स मिल रहे हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, ये इन्होंने पूरा नाम लिखा है लगभग। तो ये आपका जो है बढ़िया एक आंसर यहाँ पर आ गया है। डिस्क्रिप्शन भी काफी अच्छा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसमें कितना आयरन कंटेंट होता है, इन्होंने लिखा है। और कुछ जो लीस्ट आयरन कंटेंट है, जैसे यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमंग ऑल, ये इस तरीके से कुछ स्पेसिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्होंने बताया है। तो एक अच्छा आंसर यहाँ पे बनता है। ओके, ये देखिए इसकी मैं बात कर रहा था, ये थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन है कि लाइक जितना स्पेस हमको मिला है लिखने के लिए उसी के अंदर इन्होंने इस चीज को किया है। और कितना अच्छा है कि ये बाहर इन्होंने जो है ऐसा एक बॉक्स के अंदर उसको रख दिया है, ठीक है। तो इससे क्या है कि चेक करने वाले को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भैया सब इधर उधर मिक्स हो गया है या मिजरा हो गया है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि लिखा हो एक तरफ, डायग्राम एक तरफ बना हो और काफी सुंदर वो देखने में लगे, ठीक है। और इन्होंने जो लिखा है काफी अच्छा और कंटेंट इनका दिख रहा है मुझे, जो अभी तक किसी पेपर में हमको नहीं दिखा था। कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज में इन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये सब नाम लिखा है। कॉटन ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, ये इन्होंने बता दिया है ना, कि ब्लैक सॉइल वाले एरिया में। एक्सटेंशन की बात करें तो मोस्टली इन डेक्कन प्लेटू, अहमदाबाद के बारे में लिखा है कि बोस्टन ऑफ ईस्ट, ठीक है। कोयम्बटूर का लिखा है फेमस फॉर कॉटन इन साउथ इंडिया। ओके, तो ये एक कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है और जितना स्पेस इनको दिया गया उसी के अंदर इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये काफी अच्छा एक आंसर है, जिसकी वजह से इनको 2 में 2 मिले हुए हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब हम लोग मॉडल आंसर के बारे में, ठीक है। देखिएगा, so what are the main factors behind declining mortality rate in India?
then advances in medicinal and health technologies, reduction in spread of communicable diseases such as cholera due to better water and sanitation facilities, okay, better food security due to almost universalization of public distribution system and increased literacy among women leading to better child health, okay। तो ये यहाँ पर 4 पॉइंट्स में यहाँ पर नाम जो है लिखा हुआ है, और भी कई सारे कारण हैं बट मेन फैक्टर्स यहाँ पे बोला जा रहा है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसमें से लिख रहे हैं। सभी सही है, एटलीस्ट आपको 4 कंटेंट तो देना ही चाहिए क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यू जो भी आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है वो आप उसको लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखिएगा आयरन ओर कंटेंट के बारे में बात करें तो ये बस जैसा लगभग सब लोगों ने इसका आंसर सही तरीके से किया था वैसा ही आंसर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। आयरन ओर्स आर ऑफ 4 टाइप्स, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सेटेराइट, और यहाँ पर इनके बारे में बता दिया गया है। कुछ फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताया गया है, कुछ केमिकल जो इसके कंपाउंड्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्या कंटेंट है उसमें, कितना कंटेंट है, ओके क्लियर। तो ये एक अच्छा इस तरीके से आंसर आपका बनता है। ये देखें यहाँ पर भी वही आ रहा है आपका, विच आर दी कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया। सो 3 कॉटन ग्रोविंग एरियाज है, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नदर्न राजस्थान इन नॉर्थ वेस्ट, एंड देन गुजरात एंड महाराष्ट्र इन वेस्ट, एंड प्लेटूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इन साउथ, ओके। 3 एरिया में इसको डिवाइड करके बता दिया गया है, तो ये काफी एक अच्छा आंसर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। लाइक 3 कॉटन ग्रोविंग एरियाज उसको बांट दिया गया है, एक आपका जो है नॉर्थ वेस्ट में एक बता दिया गया है ना, देन आपका एक वेस्ट एरिया में बता दिया गया है, और एक आपका जो है साउथ एरिया में बताया गया है। तो इस तरीके से क्या है और थोड़ा सा कैटेगराइज हो गया और थोड़ा अच्छा हो गया, ये हमारा आंसर क्लियर है। कुछ लोगों ने जो है उनको ज़्यादा कुछ ऐसा समझ में नहीं आया होगा तो उन्होंने केवल स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक। और ये ऐसा एक मैप यहाँ पर दे दिया गया है, अब आपके ऊपर किस तरीके से इसको बनाते हैं। ये मैप यहाँ पर आपका कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया को शो कर रहा है, तो ऐसा मैप हमको जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका 1, 2 एंड 3 पार्ट्स यहाँ पर आप बांट सकते हैं। फिर तीसरा एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था ईस्टर्न घाट के बारे में, ज्योग्राफिकल नेचर लिखने के लिए आया था। तो ये ईस्टर्न घाट का भी मैप आपको बनाना चाहिए, और उसमें क्या क्या चीजें आपकी आती हैं वो आप बताइए कि ये डेक्कन प्लेटू और स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू दी नीलगिरीज इन द साउथ, ठीक है। यहाँ तक आपका नीलगिरी आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है इसका एक्सटेंशन है, ये इस तरीके से बताया गया है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ऐसा एक आप मैप बना ही सकते हैं, बहुत आसान है ना। इंडिया का एक ऐसा इस तरीके से मैप बनाएं और जो है यहाँ पर आप बता दें, लाइक ऐसे इस तरीके से ये आपका घाट हो जाता है, ठीक है, ईस्टर्न घाट लाइक दिस, ओके। चलिए, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने लगभग 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द एक्सटेंशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नदन सरकार्स, ओके। तो यहाँ पर 2 चीजें पूछी गई हैं, एक एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया है और एक आपका पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको 2 हिस्से में ऐसा बांट के यहाँ पे आंसर लिखा गया है जो कि सही है। एक्सटेंशन में बताया गया है नदन पार्ट ऑफ दी ईस्टर्न, ओके, ईस्टर्न घाट्स इंक्लूड उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका एक्सटेंशन एक बता दिया गया। देन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, लाइक डेल्टा फॉर्मेशन बाय पेनिनसुलर रिवर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये कि यहाँ पर डेल्टा फॉर्म होता है, ये इन्होंने लिखा। होम फॉर दी क्या लिखा है, ऑलिव टर्टल, ओके, ठीक है। देन आपका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज फाउंड, ये फॉरेस्ट के बारे में बता दिया गया है ना। यहाँ पर जो है किसका एक नेचुरल हैबिटेट है वो एक बताया गया है। यहाँ पर रिवर सिस्टम से रिलेटेड एक बात बता दी गई है, वेरी गुड। लेक फॉर्मेशन दैट इज चिल्का लेक, ओके। देन एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल एंड कोस्टल एरियाज, ठीक है। ये कुछ इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लिखने की कोशिश करी है जिसके आधार पे इनको 4 में से 2 मार्क्स जो है मिले हैं, है ना। देखेंगे कि और कितना अच्छा ये हो सकता था, ठीक है। एक आंसर और लेते हैं। नदन सरकार्स आर एक्सटेंडेड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने भारत का एक मैप बनाया है, बढ़िया बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर नदन सरकार ये इन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास फ्रॉम रिवर्स, ओके, growth of mangrove forest, and then a high level of flora and fauna, then non-regular mountain series of Eastern Ghat, ठीक है।
On west it is surrounded by छोटा नागपुर प्लेटू and on east by ईस्टर्न घाट। ओके, तो ये एक इन्होंने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी इन्होंने यहाँ पर जैसे एक लाइन ये जो लिखा है ये लगभग इनका जो है एक्सटेंशन के अंतर्गत आ जाता है, जो कि इनको शुरू में लिख देना चाहिए था, है ना, जो कि खैर कोई इशू नहीं है, कंटेंट देना इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर? चलिए, तो ये एक अच्छा एक आंसर हमको मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इसका एकदम से सही उत्तर क्या हो सकता है। ओके, लाइक द कोस्टल प्लेन्स along the Bay of Bengal are wide and level as compared to the western coastal plains. In the northern part, primarily in Odisha and Andhra Pradesh, these are referred to as the northern Sarkars. Okay, this consists of the deltas of large peninsular rivers such as the Mahanadi, Godavari and Krishna. Lake Chilika, which is the largest salt water lake in India, is an important feature of this region. ठीक है, लगभग हर वो चीज जो यहाँ पर आ सकती थी वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। मैप भी आपको इस तरीके से बना लेना है ताकि ये जो है आपका पेपर पे प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हो जाए। 3 पेपर हमने देखा था जिसमें 2 पेपर में इस तरीके से मैप जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि काफी अच्छा तरीका है अपने आंसर को अच्छा बनाने का। ओके, चलिए, तो 4 मार्क्स का हो चुका है। बात करते हैं हम लोग 8 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा गया है और क्या लिखा गया है। ओके, पहला क्वेश्चन पे पहला आंसर शीट लेते हैं हम लोग। अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर एज अ सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, इन्होंने जो है पॉइंट वाइज लिखा है, 3 पॉइंट में इन्होंने अपना आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 1 क्लीन एनर्जी है, नंबर 2 रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ओके, for electricity generation and electricity generation India require huge amount of electricity to meet the electricity demand in country. Nuclear source is one of the best sources. Okay, then safe. Okay, power generation through nuclear power is safe as compared to other sources. फिर ह्यूज पोटेंशियल की बात करी है, फिर कार्बन एमिशन यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस 7 पॉइंट्स में इन्होंने आंसर किया है। बहुत अप्रोप्रिएट तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है ना। ये आपका सिग्निफिकेंस की बात कर रहा था, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स इन्होंने जो लिखे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन और अच्छे हो सकते थे। इन्होंने क्या लिखा है देखें, तो उन्होंने पॉइंट वाइज लिखा था। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये मुझे आपका जो है लाइक ठीक, ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, देखते चलिएगा। न्यूक्लियर पावर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूजिंग यूरेनियम 238 एज फ्यूल। इंडिया इज heavily dependent of coal as source of electricity generation, and nuclear source of energy is followed by thermal and hydroelectricity. Okay, 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, 23 रिएक्टर्स हैं, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ओके, और डिपेंडेंसी ऑन कोल को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, ये इन्होंने बताया है ना। इंडिया हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मोनोजाइट एंड थोरियम, जो आपका फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, वो इन्होंने बता दिया। इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट would help India attain net zero goal emission by 2070. ओके, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो है मैप में ये भी बता दिया है कि कहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके लिए इंडिया में ये चीज़ जानी जाती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन हमें दिख रहा है, और देखते हैं इसका मॉडल आंसर क्या इसमें हो सकता है। द कोस्टल, अच्छा, न्यूक्लियर पावर इज द use of nuclear reactions to produce electricity. Presently, most of the electricity from nuclear power is produced by nuclear fusion of uranium and plutonium in nuclear power plants. India currently sources 2.8% of its energy requirements from nuclear power. Okay, ये आपका एक डेटा यहाँ पर हमने दिया है जस्टिफाई करने के लिए सिग्निफिकेंस को। ओके, फिर आपका सिग्निफिकेंस एज अ सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, है ना। तो उसमें फिर लाइक आपका बताना होगा कि भाई क्या नहीं है जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। लाइक वेरी रिच इन जो है नॉट वेरी रिच इन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज जो इंडिया है वो, और इस वजह से हमको जो है दूसरा एक सोर्स ढूंढना पड़ता है जिसमें हमको लार्ज एंड ग्रोइंग एनर्जी डिमांड की आवश्यकता है। ऑल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर आर रिक्वायर्ड टू बी डिप्लॉयड ऑप्टिमली. It is clean and environment friendly with no carbon emissions during its generation, as it can be sourced 24/7
इट कैन प्रूव टू बी अ बेस लोड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके, 24/7 ये अवेलेबल होता है, इसलिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक्सपांसन ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी विल हेल्प इन द कंट्रीज एनर्जी ट्रांजिशन फॉर मीटिंग द गोल ऑफ नेट जीरो इकोनॉमी। ओके, और फिर यहाँ पर एक मैप यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पर कौन कौन सा पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर या ऑटोमिक पावर स्टेशन, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन, कैपेसिटी, ये सब के बारे में बताया गया है। कुछ और क्वेश्चन भी आता है तो आप आसानी से ये आंसर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पूरा कंप्लीट आपका जो डेटा है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो ये हो गया 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 10 मार्क्स में हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयन रीजन। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, हिमालयन रीजन के बारे में बताना है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या क्या लिखनी चाहिए। हिमालय के कौन कौन से पार्ट हैं, चाहे वो आपका एज पर दी फॉर्मेशन हो, है ना, एज पर दी एरिया वाइज हो, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। हिमालय की बात हो रही है तो उसके कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से रॉक सिस्टम से बने हुए हैं, उस हिमालय की क्या खासियत है, वो कंटिन्यूअस है, रेगुलर है, इरेगुलर है। ओके, उसकी एवरेज हाइट कितनी है फ्रॉम द सी लेवल। ओके, ये सारी चीज़ें बताएंगे, है ना, तो ये कंप्लीट आंसर यहाँ पे बन पाएगा। तो हिमालय रेंज इज सिचुएटेड ऑन द नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इट हैव इट्स ओन सिग्निफिकेंस, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। देन ग्लेशियर के बारे में लिखा है, रिवर्स के बारे में लिखा है। ओके, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट इन्होंने नहीं दिया है। माउंटेन्स एंड पिक्स के बारे में यहाँ बता दिया है कि भाई यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन पिक माउंट एवरेस्ट है, सिचुएटेड इन हिमालयन रेंज। ओके, फॉरेस्ट के बारे में बताया है कि और क्या क्या वहाँ पे मिलता है, कौन कौन सा वुड। टूरिज्म के बारे में बता दिया, हिमालयन रेंज ये बता दिया है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने लिखा है, ये इन्होंने जो है हिमालय क्षेत्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इस तरीके से बताने की कोशिश करी है। एक जनरल आंसर इन्होंने किया है। ओके, अच्छा आंसर तब होगा जब हिमालय के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आप मेंशन करोगे और फिर इंडिविजुअली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखोगे। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर इनको करना चाहिए था। ओके, अल्पाइन ट्री कवरेज। ओके, तो इन्होंने भी लगभग वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। अल्पाइन ट्री कवरेज के बारे में लिखा है, डिवीजन लिखा है, डिवाइडेड इन पार्ट्स। ओके, ट्रांस हिमालयास, हिमाद्री, दैट इज ग्रेटर हिमालयास, लेजर हिमालयास एंड शिवालिक्स। ओके, देन आपका ब्रॉडर इन वेस्ट एंड विड्थ ऑफ 400 किलोमीटर एंड थिनर इन द ईस्ट। ओके, ये गड़बड़ है ना, अराउंड 2400 किलोमीटर है आपका आता है। ओरिजिन ऑफ हिमालयन रिवर ऑफ पेरेनियल नेचर सच एज गंगा, यमुना एंड इंडस एंड भागीरथी, ब्रह्मपुत्र। फोल्ड माउंटेन, रिलेटिवली न्यू माउंटेन, स्टील इन फॉर्मेशन प्रोसेस मेड बाय कोलिजन ऑफ तिब्बत प्लेटू। ओके, ठीक है, तो ये एक आंसर इनका जो दिख रहा है, इन्होंने जो है इन जनरल जो बेसिक जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे लिखा है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने एक मैप भी बनाया है, और जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है ये स्कैन्ड कॉपी है। मैप इन्होंने जो बनाया है वो पेंसिल से बनाया है। ठीक है, बना सकते हैं लेकिन कोशिश करिएगा कि पेंसिल की जरूरत ना पड़े आपको, आपको पूरा पेपर जो है आपको पेन से ही बनाना चाहिए। ठीक है, ओके, पेंसिल से इसलिए क्योंकि ये मिट सकता है, कोई किसी वजह से भी मिट सकता है, ये ज़्यादा समय तक इसमें रहता नहीं है पेपर पे। ओके, तो ये जो है आपका पेन यूज़ करिए, ज़्यादा बेहतर है, ब्लैक पेन से ही आप इसको बनाइए। लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा है, इन्होंने थ्योरी भी लिखा और साथ में एक मैप बना करके हिमालय के डिफरेंट टाइप्स को वहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख रहे हैं, है ना। बेसिक इसका जो एक आंसर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए देखिएगा। इन जनरल पहले तो ये इन्होंने बताया, हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन्स दैट स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया कवरिंग अबाउट 2400 किलोमीटर। ओके, दिस माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये टोटल एक्सटेंशन इन्होंने बता दिया। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए तो ओवरऑल जो है विड्थ एक बता रहे हैं, एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंस भी इन्होंने बता दिया है। उसके बाद फिर इन्होंने 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है, ग्रेटर इनर हिमालयास, देन आपका हिमाचल, लेजर, देन शिवालिक्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय को नहीं मेंशन किया, कर सकते हैं ट्रांस हिमालय को भी, क्योंकि इंडिया के हिमालय रीजन को पूछा है इसलिए जो है ट्रांस हिमालय को थोड़ा सा छोड़ दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांस हिमालय भी इंडिया में उसके कुछ हिस्से यहाँ पर आते हैं, लाइक जास्कर है ना, जास्कर रेंज हो गया, ओके, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये एक मैप आपको इस तरीके से बनाना चाहिए। ओके, और तब ये जा करके कंप्लीट आपका 10 मार्क्स का आंसर यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो है आपका
मेंस के इस एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमने जाना कि किस प्रकार से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से सब्जेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसका आंसर हमें करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कोई क्वेश्चंस मेंस के जो आप चाहते हो कि उस क्वेश्चन पर हम कुछ एक्सप्लेनेशन लेकर के आए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर और चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो सीजीपीएससी मेंस की तैयारी आप जारी रखिएगा और मजबूती से आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।